morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9 subject social science, and today we are going to discuss chapter number 3rd, and the topic name is Nazism and the rise of Hitler. This is the lecture 4th of history. So student, let's start, and firstly we will recapitulate previous lecture. And student, in previous lecture we have discussed about the rise of Hitler, and Hitler was born in 1889 in Austria, and after that he joined German Worker Party, and after that the German Worker Party name was National Socialist German Worker Party, and after that this party came to be known as the Nazi Party, and Nazism was the ideology of Adolf Hitler. So student, let's start, and firstly today we will cover some topic. Firstly we will cover Enabling Act. Student, when Adolf Hitler took the power of Germany, he introduced the Enabling Act, and according to the Enabling Act, all power in the hands of Adolf Hitler. And after that we will discuss about economic reconstruction of Germany, and after that we will learn about the condition of Second World War and impact of the Second World War. And after that we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture, and last I will give some question in your homework. So student, let's start. Firstly we will discuss about the Enabling Act. When Adolf Hitler came to the power, he implemented the act, the Enabling Act. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. And you know, the president of Germany, Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. And when he came to the power, he used Enabling Act. He implemented the act, Enabling Act, and according to the Enabling Act, Hitler gave all power to sideline parliament and rule by decree. Means he misused their power and he ruled by decree, and this act was established dictatorship in Germany, because Hitler removed the constitution of the German and he established dictatorship in Germany. According to the Enabling Act, the all political party and trade union except Nazi Party and its affiliates were banned. Mean those party were against the Nazi Party were banned. पावर में आने के बाद 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप में उसको चांसलरशिप बनाया गया, हाईएस्ट पोजीशन दी गई। लेकिन उसमें पावर में आते ही अडोल्फ हिटलर ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने एनेबलिंग एक्ट लगाया, जिसके अकॉर्डिंग सारे रूल जो है वो अडोल्फ हिटलर के पास रहेगा, और उनके अकॉर्डिंग उसने क्या है, कंट्री में आते ही डिक्टेटरशिप को स्टार्ट कर दिया और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव कर दिया, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी नाजी पार्टी से के अगेंस्ट जो भी पार्टी होती उन सब पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया था। तो ये सारी जो पावर थी उसने क्या है, अपनी पावर को मिसयूज़ किया था। एंड द नाजी स्टेट established complete control over the economy. After he took the power, he controlled the army, economy, media, and the judiciary. And apart from the already existing regular police in German uniform and the SA or the stormtrooper, the Nazi government, to enhance their power, they introduced secret police, and the secret police name was Gestapo.
जैसे कि रशियन पुलिस का नाम चेका था, तो वैसे ही जर्मनी में भी एडोल्फ हिटलर ने जर्मन यूनिफॉर्म, जर्मन पुलिस के अलावा वहाँ पे अलग अलग सीक्रेट पुलिस वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि गेस्टापो, द सीक्रेट पुलिस, प्रोटेक्शन स्क्वाड एंड क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस। अपनी पावर को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, लोगों को डोमिनेट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी की उन्होंने क्या पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे अपॉइंट किए, ताकि वो अपनी पावर को ज़्यादा एनहांस कर सके। तो इसकी वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के डिक्टेटरशिप वहाँ पे जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने अपनी पावर में आने के बाद क्या किया था, अपनी पावर का मिसयूज़ किया था। And all these newly organized forces had extra constitutional power. All political parties, those party who were supported the Nazi party, they had extra constitutional power. It made and all new organization made the Nazi state as the most fearful क्रिमिनल स्टेट। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ज़्यादा डोमिनेट होने की वजह से, ज़्यादा पावर का यूज़ करने की वजह से नाजी सिस्टम को क्या बना दिया, क्रिमिनल स्टेट का नाम पे बना दिया था। और काफ़ी सारे लोग नाजी स्टेट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो बहुत गलत पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। एंड पीपल वर डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर एंड राउंडेड एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप and deported at will or arrested without any legal procedure. And after when the all power in the hands of Adolf Hitler, many people were arrested without any reason. They were sent to concentration camp and वहाँ पे concentration camp में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर होती थी। कोई भी पर्सन अगर वहाँ से भागना चाहता था तो वहाँ पे उनको क्या अरेस्ट किया जाता था, उनको मारा जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। और बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कोई प्रॉब्लम के, बिना किसी कारण उनको क्या है, बिना उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और बिना कोई लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट कर दिया जाता था। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी उनके अगेंस्ट होता था जनाजी पार्टी के, वो उनको कंसंट्रेशन कैंप में सेंड कर दिया करते थे। तो ये इसी वजह से काफ़ी सारे जो पर्सन थे बाद में नाजी पार्टी के अगेंस्ट हो गए थे। और ये जो पार्टी थी उनका मेन पर्पस था लोगों को डोमिनेट करना। एंड after that, you know, after the first world war, German condition was very poor and Hitler wanted to overcome the economic crisis of Germany. So he introduced the policy of economic reconstruction and he gave the responsibility of economy recovery to the economist Hjalmar Schacht, who wanted full production। इसलिए उसने वहाँ के इकोनॉमिस्ट को ये सारी वहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कंट्री में इकोनॉमी सिस्टम को बूस्ट किया जाए, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। एंड दे वांटेड फुल प्रोडक्शन and full employment through a state funded work creation program. They were started a state funded work creation program and according to the people got full employment and they wanted full production. वो चाहते थे कि कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होगी और कंट्री की इकोनॉमी भी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। इसीलिए उन्होंने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम सेट किया जो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। एज ए रिजल्ट द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल कार द वॉक्स वर मेड। और इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वहाँ पे सुपर हाईवे बनाए गए एंड द मेन पर्पस ऑफ सुपर हाईवे वर टू प्रोवाइड easy transportation and easy accessible to the people, easily help in export and import of goods from one country to another country. And they were made Volkswagen car for the people of German. तो वहाँ पे पीपल्स कार के लिए वहाँ पे वॉक्सवैगन कार बनाई गई, सुपर हाईवे बना गया ताकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा वहाँ पे हाईवेज़ होंगे तो वहाँ पे बिजनेस इजीली होगा, ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगा। और वहाँ पे लोगों के लिए वॉक्सवैगन नाम की गाड़ियाँ भी बनाई गई थी। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने का उनका मेन पर्पस था ज़्यादा प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा
तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो वर्किंग कंडीशन भी क्या होंगी, बेटर होंगी, जिससे इकॉनमी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। तो इसी वजह से हर्बर्ट साख्त ने हिटलर को ये सारी एडवाइस किया। एंड आफ्टर दैट सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसीज, इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस विच वर, फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी दूसरी कंट्री के साथ डील करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। एंड फर्स्टली Hitler withdraw the League of Nations in 1933. League of Nations means organization of different country, and Germany also the part of League of Nations. So firstly he withdraw his name from the League of Nations and he became the independent country. सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन में से अपना नाम हटा लिया था और वो इंडिपेंडेंट बन गया था जर्मनी। हिटलर ने हटाया था उसका नाम। एंड ही रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। इन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड टुक ओवर द पावर ऑफ राइनलैंड एंड आफ्टर दैट in the after when the Adolf Hitler came to the power, he reoccupied the Rhineland and Rhineland the rich industrial area, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वो फ्रांस ने अपने एरिया में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन हिटलर ने पावर में आते ही वहाँ पे जर्मनी में राइनलैंड को अपने पावर में लिया था 1936 में। और इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वर इंटीग्रेटेड बाय हिटलर। मैनी पीपल वर सेटल्ड इन ऑस्ट्रिया, दोज पर्सन हु स्पीक्स जर्मन लैंग्वेज, सो he made a slogan one people one empire and one leader, and according to the slogan Austria and Germany were integrated. हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जर्मन स्पीकिंग पर्सन रहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्लोगन बनाया वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, और इसी के अकॉर्डिंग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को एक कर दिया था। In 1938 Hitler seized the German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and then took over the whole country. अब चेकोस्लोवाकिया द नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी, वहाँ पे एक एरिया है सुडेनलैंड, चेकोस्लोवाकिया में एक सिटी का नाम है सुडेनलैंड, वहाँ पे सभी लोग जर्मन स्पीकिंग है। तो जर्मन ने वहाँ पे जो हिटलर ने क्या किया, सुडेनलैंड वाला एरिया भी अपने जर्मन में एक्वायर्ड कर लिया, ताकि वो जो जर्मन स्पीकिंग वाले पर्सन है वो जर्मन में ही क्या हो जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। और हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के जो एरिया जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले थे उन पे क्या कर लिया, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एंड इंग्लैंड सपोर्टेड दिस एक्ट ऑफ हिटलर एज इट थॉट दैट वर्साइड ट्रीटी वाज टू हार्श फॉर जर्मनी, और इंग्लैंड ने भी इनको सपोर्ट किया क्योंकि जो पीस और ट्रीटी हुई थी अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में, उसकी वजह से जर्मनी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी, क्योंकि जर्मनी लॉस्ट इट्स overseas colonies, 1/10 of population, 75% of coal, 26% of iron, and they compensate 6 billion, okay, and the Rhineland area. So England supported to the Hitler because the Versailles Treaty was very painful for the Germany. तो इतनी सारी जो थी जर्मनी में अडोल्फ हिटलर ने पावर में आने के बाद अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था। सबसे पहले उसने वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज किया और वहाँ पे अपनी इकॉनमी कंडीशन को इम्प्रूव करने इकोनॉमिस्ट को वहाँ पे एडवाइस के लिए बुलाया और उन्हें एडवाइस किया। और हिटलर ने सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से अपना नाम रिमूव किया, राइनलैंड को वापस लिया, और हिटलर ने सुडान चेकोस्लोवाकिया एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। आफ्टर दैट Sacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament. Rearmament means did not waste in the money to purchase equipment, war equipment and army people. Means साख्त ने एडवाइस किया कि हिटलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रियरमेंट यानी कि ज़्यादा प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेपन, ज़्यादा हथियारों को खरीदने या आर्मी को रखने में ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो कंट्री है, अभी कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, डिफिसिट फाइनेंस है। अभी भी जो कंट्री में है फाइनेंशिंग प्रॉब्लम है, और यहाँ की जो फाइनेंशिंग प्रॉब्लम होने की वजह से ज़्यादा पैसा हमें वेपन्स और क्या है आर्मी में वेस्ट नहीं करना चाहिए।
चाहिए। लेकिन जो हिटलर था वो किसी की बात को फॉलो नहीं करता था, इसलिए साख्त को भी उसने उसकी पोस्ट से हटा दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी की परमिशन लेना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने साख्त की बात को भी फॉलो नहीं किया था। आफ्टर दैट बेटा, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ। क्योंकि अब तक जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई थी, और जर्मनी में हारने के बाद जर्मनी बैड कंडीशन की वजह से हिटलर ने पावर में आया, और पावर में आने के बाद उसने नाजी पार्टी बनाई, और पार्टी बनने के बाद वहाँ पे फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन स्टार्ट हुई। And Hitler chose war to overcome economic crisis, as he thought that resources were to be accumulated through expansion territory. He wanted to overcome the financial crisis, so he started the war, and he wanted to expansion of territory, and he accumulated the resources थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। तो हिटलर ने क्या है, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसने क्या है, वॉर का रास्ता अपनाया। उसने सोचा कि वॉर के द्वारा दूसरी कंट्री पे वॉर करके उनके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और जो अपने एरिया को ज़्यादा बढ़ाने लेगा, और ज़्यादा बढ़ाने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल कर लेगा। तो इन सेप्टेम्बर 1939 जर्मनी invaded Poland, and this started a war with France and England। तो जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इन सितंबर 1939, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, और उसी समय फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी में वहाँ पे क्या हो गया, वॉर होना स्टार्ट हो गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो हो गया, जर्मनी अपने पोलैंड पे कब्जा किया, और उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने भी जर्मनी के साथ वॉर करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दैट इन सितंबर 1940 ए ट्रिपेट्रिट पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। उसी समय सितंबर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी समय 3 कंट्री के बीच में ट्रिपेट्री एक्ट लागू हुआ, और जिसने हिटलर को क्या की, इंटरनेशनल पावर प्रोवाइड की। इस वाली पावर को इनको कहा जाता है एक्सिस पावर, एक्सिस पावर। इन्होंने अपनी पावर ली, जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने अपनी इंटरनेशनल पावर को एनहांस करने के लिए हिटलर को क्या की, इन्होंने परमिशन दी। और बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर बिकेम वेरी पावरफुल, और 1940 तक आते आते हिटलर की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, क्योंकि इटली और जापान ने भी जर्मनी को क्या किया था, सपोर्ट किया था। पपेट रेजिम विच सपोर्टेड हिटलर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। और पपेट क्या है, जो उसके हाथ की कठपुतली थे, यानी कि जो हिटलर के अंडर कंट्रोल थे, वो सारे यूरोप में क्या हो गए, काफ़ी सारे यूरोप के पार्ट में जर्मनी एडोल्फ हिटलर के जो पपेट थे, जो उसके सपोर्टर थे, उन्होंने यूरोप के काफ़ी सारे पार्ट्स पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि 1940 तक आते आते यूरोप के काफ़ी सारे हिस्से पे एडोल्फ हिटलर ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। After that बेटा, Hitler attacked the Soviet Union in June in 1941 to enhance their power। अपनी पावर को एनहांस करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में उसने सोवियत यूनियन यानी कि USSR पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, सच एज रशिया। एंड इट वॉज ए हिस्टोरिक मिस्टेक मेड बाय हिटलर। और ये उसकी सबसे बड़ी हिस्टोरिक ब्लंडर मेड बाय हिटलर, ये उसकी सबसे बड़ी, पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर ने जो इतना बड़ा सोवियत यूनियन पे जो अटैक किया था, ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी। इसी वजह से सोवियत रेड आर्मी, जब भी उसने USSR यानी सोवियत यूनियन पे अटैक किया, तो वहाँ की आर्मी ने जर्मनी को स्टालिनग्राड में उनको हरा दिया एंड रिच टू बर्लिन। और अटैक करते करते वो बर्लिन एरिया यानी कि जर्मनी के बर्लिन तक पहुंचे। आफ्टर दैट द सोवियत आर्मी एस्टेब्लिश देयर हेगेमनी ऑन द ईस्टर्न यूरोप। और वहाँ तक जाते जाते सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप में क्या कर लिया था, पूरा कंट्रोल कर लिया था, और जर्मनी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये सबसे बड़ी हार थी। USSR पे अटैक करने की वजह से वहाँ की आर्मी ने जर्मन की आर्मी पे कंट्रोल कर लिया था, और ईस्टर्न यूरोप पे अब जर्मनी का कंट्रोल काफ़ी ख़त्म हो गया था। आफ्टर दैट बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर USA वाज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, USA क्या इन्वॉल्व नहीं था।
यूएसए, क्योंकि व्हेन द जापान ऑक्युपाइड फ्रांस एंड चाइना एंड प्लान टू अटैक यूएसए फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 1970 में यूएसए ने एंटर किया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। तो यूएसए की बैड कंडीशन, यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बैड इकोनॉमी कंडीशन होने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। बट लेकिन जापान ने जब ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना पे ऑक्युपाइड किया, यानी फ्रेंच इंडो चाइना को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उन्होंने वहाँ पे यूएसए के नेवल बेसिस यूएसए के पैसिफिक ओशियन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जब जापान ने उस पर अटैक किया, जब जापान ने, जर्मनी और इटली ने जब यूएसए पे अटैक करने का प्लान बनाया, तो उसके बाद यूएसए ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जापान सपोर्टेड हिटलर एंड बॉम्ब्ड यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। और जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया, और जापान ने फिर हिटलर के साथ मिलकर यूएसए में बॉम्ब फेंके पर्ल हार्बर एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यूएसए पे अटैक किया था, जिसकी वजह से अटैक करने के बाद यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन May 1945 विद हिटलर डिफीटेड। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के एंटर होने के बाद फिर हिटलर क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था। और मई में ही फिर उसने क्या किया था, अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के साथ ही क्या किया था, बंकर में जाके सुसाइड कर लिया था आफ्टर द डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड जापान सरेंडर इन अगस्त 1940, और जापान ने भी 1945 में सरेंडर कर दिया था यूएस के आगे। एंड आफ्टर द यूएस ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। और बाद में उन्होंने उस पर सरेंडर कर दिया था अगस्त 1945 में। और उसके अगेंस्ट यूएस ने सबसे पहले जापान पे क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम का अटैक किया, जिसका जो है बैड रिजल्ट रहा, बैड इफेक्ट। वहाँ के जो लोग थे उनको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड हो गए। और उसके बाद अटैक होने के बाद जापान ने 1945 में क्या कर लिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली भी क्या होगी, तो बहुत बुरी तरह हार गई। तो ये इंसिडेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद फिर अडोल्फ हिटलर की पावर ख़त्म होने के बाद सारी पावर अब क्या हो गई थी, यूएसए यानी कि अलाइड पावर के पास आ गई थी। और जर्मनी क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था। तो दिस वर द इंसिडेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड स्टूडेंट, टुडे योर होमवर्क सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज हिटलर? एंड यू नो हिटलर was born in 1889 Austria and spent his youth in poverty. When the World War first broke out, he enrolled for army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medal for bravery. Question number second. What promises was made by Hitler to the people as a leader of Germany? He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Treaty of Versailles, and restore the dignity of German people. And question number third, when and by whom Hitler was offered highest position in the cabinet of minister? On 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. Question number 4, what was enabling act? And this act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all the power to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. Question number 5, which security forces were created by Nazis to control order in society? Answer, beside regular police in green uniform,
there are Gestapo, secret state police, and SS, the protection squads, criminal police, and security services. Question number 6. What was the impact of World War I on European society? Answer. Europe became a continent of debtors from creditors. The Weimar Republic was forced to pay a huge compensation, lump sum 6 billion. After the First World War, soldiers were placed above civilians, and after that the media glorified their trench life, but in reality they lived miserable life in trenches. And question number 7, what does the fire decree? And answer is fire decree of 28 February 1933 identifiably suspend civics right like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. And today your homework student, do following questions. First question, which famous economist was appointed by Hitler for economic recovery of Germany? Question number 2, how did Hitler follow the slogan of one people, one empire and one leader? Question number 3, among which 3 countries tripartite pact was signed? Question number 4, when did US enter the World War II? And question number 5, explain the impact on Germany of her refusal to pay compensation in 1923. And question number 6, how was economy recovery made in Germany? And question number 7, how Nazi party was formed? And student, all question done in your fair notebook, revised chapter. Okay, thank you.